Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss GFR 2017 Procurement of Goods Part 2, Rule 151 to 162. Already in Part 1, I discussed Rule 142 to 150. You know that in General Financial Rule, procurement of goods and services, it is the most important part for different type of administrative post. Financial rule is very important one for different principal exams like KVS, NVS, EMRS and UPSC principal exam, office superintendent, LDC, UDC section officer exams and other departmental promotion exams. This part is very useful one. So my friends, please subscribe my channel, share my video, like my video and comment my video. According to your comment, I will resurrect myself and I will rectify myself and bring some nice videos in posterior time. So now I am going to discuss procurement of goods part 2, rule 151 to 162. It is up to dated version up to month of May 2022. All previous amendments related to the GFR already I include everything in my video, so it is the up to dated version. Now I am going to start. First one, it is debarment from bidding, rule 151. ये rule को याद रखना है. First you remember the rule 151. It is related to the debarment from bidding. कभी कभी क्या है, सप्लायर को बारण किया जाता है, उसके ऊपर रोक लगा दिया जाता है कि वो बिडिंग प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकता. क्या रीज़न है? ड्यू टू सर्टन रीजन्स देयर इज debarment of the supplier for stipulated period of time, so that for stipulated period of time he cannot participate in bidding process. सो फर्स्ट वन, क्या कारण है, क्यों उसके ऊपर रोक लगा दिया जाता है? फॉर व्हाट रीजन देयर इज इम्पोजिशन ऑफ debarment ऑन द सप्लायर? सो ए बीडर शैल बी debarred if he has been convicted of an offense under the Prevention of Corruption Act 1988. फर्स्ट एक रीजन है, यदि बीडर जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ऐसा कुछ करप्शन में इन्वॉल्व होता है और उसका नाम आ जाता है, तब उसको इमीडिएटली उसको डेबार कर दिया जाएगा. वो बिडिंग प्रोसेस में स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो पार्टिसिपेट बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. तो फर्स्ट वन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. Second one, the IPC, Indian Penal Code, or any other law for the time being in force. कभी कभी क्या है, उसके अगेंस्ट में केस लॉन्च किया जाता है. ड्यू टू सर्टन रीजन द केस इज लॉन्च्ड अगेंस्ट द corresponding supplier. फर्स्ट वन, causing any loss of life. कभी कभी क्या है, वो ऐसा एक गुड सप्लाई किया जिसमें देयर इज लॉस ऑफ लाइफ. फर्स्ट वन, राइट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन, थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ एज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट. कभी कभी क्या है, वो ऐसा कुछ गुड को सप्लाई किया जिससे there is loss of life, loss of property and it is detrimental or harmful to the public health. तो इस दो रीजन को आपको रिमेंबर करना है. एक है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन करप्शन, सो अकॉर्डिंग टू द करप्शन एक्ट 1988 he can be debarred. Second one, the supplier supplying goods due to which there is loss of life, loss of property, detrimental or harmful to the public health,
तो इस कारण के वजह से उसको स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेबार कर दिया जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। अभी देखेंगे कि मैं जो बताया अभी उसको डेबार कर दिया जाएगा, उसको बारण किया जाएगा एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ए बिडर डेबेड और एनी सक्सेसर ऑफ द बिडर, चाहे बिडर हो कि उसका कोई सक्सेसर हो, shall not be eligible to participate in a procurement process of any procuring entity for a period not exceeding 3 years। ये रिमेंबर करना है, not exceeding 3 years, 3 years से ज़्यादा नहीं है, उसको जो डेबार कर दिया जाएगा, चाहे पर्टिकुलर बिडर को और एनी सक्सेसर ऑफ द बिडर, राइट। तो for how much time he can be debarred? Not exceeding 3 years. It means up to 3 years. Okay, commencing from the date of debarment, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। commencing from the date of debarment, जिस डेट से उसको डेबार कर दिया गया उससे आप काउंट कर लो, up to 3 years he can be debarred, right? तो उसके ऊपर 3 years से ज़्यादा उसके ऊपर रोक नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। सो जो जेम एसपीवी है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो जेम एसपीवी जो जेम पोर्टल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, विल मेंटेन सच लिस्ट, वो लिस्ट एक मेंटेन करता है कि इस सप्लायर को डेबार कर दिया गया इस कारण की वजह से, which will also be displayed on the website of जेम पोर्टल, right, as well as सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, CPP, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो यदि कोई भी सप्लायर को डेबार कर दिया गया, उसका लिस्ट कौन डिस्प्ले करेगा? जेएमएसपीवी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल, ठीक है, उसको डिस्प्ले करेगा उसका वेबसाइट में। ऑल्सो जो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है वहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगा कि ड्यू टू व्हाट रीजन द सप्लायर्स आर डेबार्ड फॉर सप्लाइंग द गुड्स, राइट। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको आ सकता है जो यहाँ पर आपको रिमेंबर करना है। कारण तो मैं बताया, जो डेबार किया जाएगा नॉट एक्सीडिंग 3 years, अप टू 3 years, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि ग्रेविटी ऑफ द करप्शन और ग्रेविटी ऑफ द लॉस, क्लियर। तो वो जो मिसकंडक्ट किया है उसका ग्रेविटी कितना है उसके हिसाब से अप टू 3 years ही कैन बी डेबार्ड, राइट। ये लिस्ट जो है जेएमएसपीवी उसको मेंटेन करेगा, उसका वेबसाइट में डिस्प्ले होगा और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में भी आपको मिल जाएगा कि किस कारण के वजह से कौन सा सप्लायर को डेबार कर दिया गया और कितना साल के लिए, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। प्रोक्योरिंग एंटिटी के बात आता है, ये तो जनरली जेम पोर्टल के ऊपर चला गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, क्योंकि अभी मैंडेटरी है जो भी जेम पोर्टल में है अकॉर्डिंग टू द रूल 147, मेरा फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यदि जो भी गुड्स जेम पोर्टल में है इट इज कंपल्सरी एंड मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ऑफ द डिपार्टमेंट्स, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू प्रोक्योर द गुड्स फ्रॉम द जेम पोर्टल। जो भी कॉमन गुड्स जेम पोर्टल में है ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज को जेम पोर्टल से प्रोक्योर करना है। यहां पर यदि प्रोक्योरिंग एंटिटी यदि जेम पोर्टल में नहीं है, यदि कोई ऐसा गुड जेम पोर्टल में नहीं है, तब वो कंसर्न गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी वो बिडिंग प्रोसेस, बिडिंग इंक्वायरी करके, ठीक है, तो बिड प्रोसेस को इनवाइट करके वो गुड प्रोक्योर कर सकता है आउटसाइड से। तो यदि प्रोक्योरिंग एंटिटी का बात आएगा, ये प्रोक्योरिंग एंटिटी में डेबार ए बिडर और एनी ऑफ इट इज सक्सेसर्स, राइट, फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अंडरटेकन बाय इट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि प्रोक्योरिंग एंटिटी के बात आया, वहां पर तो जेम के ऊपर बात आ गया कॉमन में,
यहाँ पर यदि प्रोक्योरिंग एंटिटी, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी का बात आया, वो भी उसके पास जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स में मैं अभी बताया, कभी कभी क्या है जेम पोर्टल में कुछ कमोडिटीज नहीं है, तो आउटसाइड से गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी उसको बिडिंग प्रोसेस से वो प्रोक्योर करेगा, तो उसके पास भी कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर्स है नहीं कि? तो इस केस में क्या है, यदि प्रोक्योरमेंट बेसिकली प्रोक्योरिंग एंटिटी केस में यदि प्रोक्योरिंग एंटिटी डिटेक्ट किया कि कोई भी सप्लायर वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया, एक कोड ऑफ इंटीग्रिटी होता है, आगे मैं डिस्कस करूंगा, कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है तो उसको अप टू 2 इयर्स वो उसको डेवेयर कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर कॉमन केस में 3 इयर्स और यहां पर प्रोक्योरिंग एंटिटी का बात आया, यहां पर अप टू 2 इयर्स। और यहां पर जो प्रोक्योरिंग एंटिटी का बात जब आता है, आपको याद रखना है कि इफ द सप्लायर ब्रीच द कोड ऑफ इंटीग्रिटी देन प्रोक्योरिंग एंटिटी debear the concerned supplier or bidder up to 2 years, not exceeding 2 years, means up to 2 years according to the gravity of the case. If it is determines that the bidder has breached the code of integrity, code of integrity क्या है, ये डिटेक्ट किया गया कि जो पर्टिकुलर सप्लायर उसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सपोज ये डिटेक्ट हुआ वो कल्यूजन विथ ऑफिशियल्स की, कोई कुछ ब्राइब, एक्सचेंज ब्राइब विद द ऑफिशियल्स, राइट, और इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फॉर गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज को देख लो, ये सब कोड ऑफ इंटीग्रिटी में आ जाता है। कल्यूजन विथ ऑफिशियल्स, कुछ ऑफिशियल के साथ वो कल्यूड होके वो मिलके वो क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कुछ ब्राइब दे के वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कुछ इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये जब डिटेक्ट हो जाता है तब फाइनली कंक्लूजन क्या होता है कि वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया है, तो उस केस में अप टू 2 इयर्स उसको डिवेयर कर दिया जाएगा, उसको और एनी ऑफ इट्स सक्सेसर को 2 इयर्स के लिए डिवेयर कर दिया जाएगा, वो बिडिंग प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकता, राइट। ये प्रोक्योरिंग एंटिटी के लिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो बेसिकली कॉमन केस में नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, मगर पर्टिकुलर प्रोक्योरिंग एंटिटी के पास जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको प्रोक्योरिंग एंटिटी जब डिटेक्ट करता है, कुछ कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है, तो नॉट एक्सीडिंग 2 इयर्स के लिए उसको डिवेयर कर दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विल मेंटेन सच लिस्ट व्हिच विल ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन देयर वेबसाइट। यदि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कुछ सप्लायर्स को डिवेयर करता है, तो इस केस में उनका वेबसाइट में भी वो डिस्प्ले होगा कि फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली द सप्लायर्स आर डिवेयर्ड for supplying the goods, right, or what is the reason behind this, ठीक है। जो फोर्थ पार्ट देखिए, IV, the bidder shall not be debarred unless such bidder has been given a reasonable opportunity to represent against such debarment। जब ये डिसाइड किया गया कि पर्टिकुलर सप्लायर को डिवेयर कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं, उसको पूछा जाएगा क्यों आपको डिवेयर नहीं किया जाए, तो वो रिप्रेजेंटेशन देगा, उसको पूछा जाएगा कारण, ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि क्यों आपको डिवेयर नहीं किया जाएगा। आप करप्शन में इन्वॉल्व हो, आप जो गुड सप्लाई किया इसमें लाइफ लॉस हुआ, प्रॉपर्टी लॉस हुआ, और इट एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल, और पर्टिकुलरली प्रोक्योरिंग एंटिटी का बात आता है, वो बोलता है कि कोड ऑफ इंटीग्रिटी आप ब्रीच किया, तो आपके ऊपर कहीं क्यों पनिशमेंट नहीं लगेगा, क्यों आपको डिवेयर नहीं किया जाएगा। तो मगर उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और वो रिप्रेजेंटेशन देगा, उसके बाद उसको डिवेयर किया जाएगा, ठीक है। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द सप्लायर बिफोर डिबारमेंट, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल 151 रिलेटेड टू द डिबारमेंट ऑफ सप्लायर्स व बिडर्स। रूल 152, enlistment of Indian agents। Ministry or departments, if they so require, may enlist Indian agents who desire to quote directly on behalf of their foreign principals।
इसमें क्या है, जो रूल 152 है ये अमेंडमेंट के बाद, कि कोई भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो फॉरेन प्रिंसिपल्स, एक्चुअली जो फॉरेन बेसिकली ट्रेडर्स है, फॉरेन ट्रेडर्स, उनका एजेंट इंडिया में है। ओके, इंडियन एजेंट्स आर देयर, इंडियन एजेंट्स आर देयर ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेडर्स। तो ये जो रूल है कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट यदि उनको रिक्वायरमेंट चाहिए, वो भी जो इंडियन एजेंट्स है, जो फॉरेन ट्रेडर्स का इंडियन एजेंट्स है, उनको भी एनलिस्ट किया जाएगा और वो भी कोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, हु डिजर्व टू कोट डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ देयर फॉरेन प्रिंसिपल्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेडर्स, ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन सप्लायर्स, सम इंडियन एजेंट्स आर देयर। यदि कोई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो चाहता है कि कोई फॉरेन सप्लायर की, फॉरेन बीडर, उससे वो गुड प्रोक्योर करना चाहता है, वो देखता है कि यहाँ पर जो इंडिया में जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसका स्पेसिफिकेशन, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, कि उतना क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तब वो फॉरेन सप्लायर और फॉरेन बीडर से वो खरीद सकता है। और कभी कभी क्या है, वो जो फॉरेन ट्रेडर्स है उनका जो इंडियन एजेंट है उनको भी एनलिस्ट करके रखता है। ठीक है, और वो भी डायरेक्टली कोटेशन दे सकते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स now if they require to procure goods from abroad, for this reason they also enlist Indian agents on behalf of the foreign traders. Okay, and directly Indian agents on behalf of the foreign traders, they can submit quotation, right। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रूल को भी याद रखना है। रूल 152 जो है वो एनलिस्टमेंट ऑफ इंडियन एजेंट्स है, राइट। चलो रूल 153, रिजर्व्ड आइटम्स एंड अदर परचेज और प्राइस प्रिफरेंस पॉलिसी। द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस हैज रिजर्व्ड all items of hand spoon and hand woven textiles, khadi goods basically, for exclusive purchase from Khadi Village Industries Commission, KVIC, Khadi Village Industries Commission। अभी ये जो रूल है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि यदि कुछ हैंड ओवन टेक्सटाइल्स एंड हैंड स्पून गुड चाहिए तो उसमें एक सर्टन परसेंटेज खादी गुड्स हमको KVIC और कुछ क्लस्टर से खरीदना है, कुछ परसेंटेज मैंडेटरी है, आगे में डिस्कस करेंगे। तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवाइजरी है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस है कि यदि हम कुछ हैंड ओवन टेक्सटाइल्स को, हैंड स्पून गुड्स को हम प्रोक्योर करेंगे तो ये मैंडेटरी है प्रोक्योरिंग एंटिटीज के लिए, और ये कंपल्सरी है। कुछ सर्टन परसेंटेज ऑफ खादी गुड्स दे मस्ट प्रोक्योर फ्रॉम KVIC एंड अदर क्लस्टर्स, हैंडलूम क्लस्टर्स। तो अभी आगे में देखेंगे। Of all items of textiles required by the central government department, it shall be mandatory to make procurement of at least 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताया था सर्टन परसेंटेज, एटलीस्ट 20% फ्रॉम amongst items of handloom origin for exclusive purchase from KVIC and or handloom clusters। हैंडलूम क्लस्टर्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फेडरेशंस, जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, प्रोड्यूसर कंपनीज, कॉरपोरेशंस एटसेट्रा, इंक्लूडिंग वेवर्स हैविंग पहचान कार्ड्स। तो अभी जो ये रूल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है गवर्नमेंट का। यदि कोई भी प्रोक्योरिंग एंटिटी वो कुछ हैंड स्पून और कुछ वेविंग मटेरियल्स को प्रोक्योर करना चाहता है तो ये मैंडेटरी है, एटलीस्ट 20% हैंड स्पून गुड्स एंड हैंडलूम गुड्स मस्ट बी प्रोक्योर्ड, एटलीस्ट 20% मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम KVIC। ओके,
एंड और हैंडलूम क्लस्टर्स में बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फेडरेशन, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, प्रोड्यूसर कंपनीज, कॉर्पोरेशन एटसेट्रा। और जो भी वेवर्स के पास पहचान कार्ड है, वो भी कुछ वेविंग मटेरियल्स बनाते हैं, उनके पास पहचान कार्ड है जो गवर्नमेंट दिया है। तो ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रिजर्वेशन है। एटलीस्ट 20% हैंडस्पून गुड्स और हैंडलूम गुड्स मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम KVIC एंड और हैंडलूम क्लस्टर्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एटलीस्ट 20% आपको याद रखना है, राइट। और जो खद्दी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और हैंडलूम क्लस्टर्स को याद रखना है, तो एटलीस्ट 20% उनसे प्रोक्योर करना है हैंडलूम गुड्स और हैंडस्पून गुड्स। चलो नेक्स्ट को चलेंगे। मिनिस्ट्री, उसी रिजर्वेशन में मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME have notified procurement policy under section 11 of the MSME Development Act 2006। इसका जो सेक्शन 11 है, जो MSME का अंडर सेक्शन 11 है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का सेक्शन 11, जो MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, सेक्शन 11 में क्या है कि जो MSME कंपनीज को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज, उनसे गुड प्रोक्योर करना है। जो MSME कंपनीज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, उनसे गुड को प्रोक्योर करना है। तो उसके वजह से क्या होगा, ये जो MSME सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसमें मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वुड बी जनरेटेड, प्रोडक्शन वुड बी मोर, सो आवर GDP वुड बी हेल्दी वन। तो इस केस में ये गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, जो MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, उसका जो सेक्शन 11 में क्लियरली मेंशन है कि MSME एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज को उनसे गुड प्रोक्योर करना है। इसके वजह से क्या है ना, MSME सेक्टर स्प्रेड आउट होगा, वाइड स्प्रेड होगा इकोनॉमी में, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वुड बी जनरेटेड इन द इकोनॉमी, तो और GDP ग्रोथ वुड बी मोर। तो ये सब चीज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसी 153 रूल 153 जो थर्ड बिट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन प्रोवाइड फॉर मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट ऑफ एनी गुड्स, प्रोवाइड फॉर मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एनी कैटेगरी ऑफ बिडर्स और प्रोवाइड टू प्रिफरेंस टू बिडर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रमोशन ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और लोकली प्रोवाइडेड सर्विसेज। जो थर्ड बिट है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि कोई भी कैटेगरी ऑफ बिडर से हमको गुड प्रोक्योर करना है। बेसिकली गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज को कैटेगरी ऑफ बिडर से गुड प्रोक्योर करना है, मगर यहां पर देखना है जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैं इसको अंडरलाइन कर दिया, देखिए रेड में, लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और लोकली प्रोवाइडेड सर्विसेज को ज्यादातर प्रमोट करना है, ज्यादातर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रोक्योर करना है, लोकल गुड्स को प्रोक्योर करना है, ठीक है। तो आसपास एरिया में, विसिनिटी एरिया में यदि कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ लोकल गुड्स को गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज को प्रोक्योर करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है वो उनका इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, उसमें लोकल एरियाज में भी मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी जनरेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिजर्वेशन केस में जो रूल 153, ये 2-3 चीज को आपको याद रखना है, एक हैंडलूम, एक MSME, और थर्ड वन ये है बेसिकली लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भी प्रमोट करना है, राइट। चलो नेक्स्ट चलेंगे, रूल 154, परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको यहां पर एक याद रखना है कि जो वर्थ ऑफ गुड्स है वो कितना होगा जो विदाउट कोटेशन में उसको परचेज किया जाएगा, कोटेशन का जरूरत नहीं है। रूल 154, इट इज अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 25,000, 25,000 तक, रुपीज 25,000 तक हम गुड प्रोक्योर कर सकते हैं विदाउट कोटेशन, कोटेशन का जरूरत नहीं है। ओके, ओनली ऑन ईच ओकेजन में बी मेड विदाउट इन्वाइटिंग कोटेशंस और बीड्स
ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टिफिकेट टू बी रिकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। मगर एक सर्टिफिकेट को रिकॉर्ड किया जाएगा विदाउट कोटेशन में, हमको या ये अंडरलाइन में कर दिया अप टू ₹25,000 हम जो गुड प्रोक्योर करेंगे वो विदाउट कोटेशन में प्रोक्योर होगा, और वहां पर एक सर्टिफिकेट रिकॉर्डेड होगा। आप देखिए सर्टिफिकेट में यहां पर क्लियरली मेंशन है, आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स purchased are of the requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price। तो यहां पर क्लियरली एक सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड होगा कि जो भी गुड को प्रोक्योर किया गया अप टू ₹25,000 उसका क्वालिटी स्पेसिफिकेशन अच्छा है और एक रिलायबल सप्लायर से रीजनेबल प्राइस से उसको प्रोक्योर किया गया, ऐसा एक सर्टिफिकेट रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, ये बहुत है, जो पर्सनली जो प्रोक्योर करेगा वो एक सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशन करेगा, पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स परचेज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्विसाइड क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन एंड ऑल्सो दीज गुड्स हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम ए रिलायबल सप्लायर एट ए रीजनेबल प्राइस। राइट। रूल 155 परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अमेंडमेंट में आ गया। आप रूल 147 जो है जीएफआर का रूल 147 उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि यदि कॉमन गुड्स जेम पोर्टल में है उसको जेम से परचेज करना है, इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रोक्यूरिंग एंटिटीज टू प्रोक्योर द कॉमन गुड्स फ्रॉम द जेम पोर्टल। यदि जेम पोर्टल में गुड्स नहीं है तो हम आउटसाइड से प्रोक्योर करेंगे। तो जो रूल 155 वही बताए, इन केस ये सर्टन आइटम इज नॉट अवेलेबल ऑन द जेम पोर्टल, यदि जेम पोर्टल में अवेलेबल नहीं है और यहां पर जो एस्टिमेटेड जो गुड्स का वर्थ हो क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, अबव ₹25,000 अप टू 2.5 लाख। आपको याद रखना है, ये जो लिमिट दोनों को याद रखना है, अबव ₹25,000 अप टू ₹2.5 लाख। और ये जो कॉमन गुड्स है वो जेम पोर्टल में नहीं है, और वर्थ ऑफ गुड्स जो वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड गुड्स है वो अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹2.5 लाख है। तब इस ओकेजन में एलपीसी, ओके, एलपीसी के द्वारा इसको लोकल परचेज कमिटी के द्वारा उसको परचेज किया जाएगा। थ्रू एलपीसी, थ्रू लोकल परचेज कमिटी द गुड्स कैन बी प्रोक्योर्ड एंड द वर्थ ऑफ गुड्स वुड बी मोर देन ₹25,000 एंड अप टू 2.5 लाख। एंड ये कॉमन चीज है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली दीज कॉमन गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन जेम पोर्टल। और जो एलपीसी है एक्चुअली 3 मेंबर्स एलपीसी में होते, लोकल परचेज कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेवल एज डिसाइडेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो एक कमिटी फॉर्मेशन करते हैं। कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं, उनका मार्केट सर्वे होता है। द कमिटी विल सर्वे, जो 3 मेंबर्स वो मार्केट को जाएंगे और वहाँ पर सर्वे करेंगे, स्पेसिफिकेशन को चेक करेंगे, क्वालिटी को चेक करेंगे और सप्लायर का पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे, वो कैसे गुड डिलीवरी ठीक टाइम में कर पाएगा कि नहीं वो भी चेक करेंगे, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, उसका पास्ट रिकॉर्ड को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ को उनको देखना है। द कमिटी विल सर्वे द मार्केट, वो जाएंगे मार्केट में, जो भी बिडर्स है, सप्लायर्स है, उनसे कोटेशन लाएंगे और कोटेशंस में स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी, प्राइस, ये सब चेक होगा और अदर कुछ पास्ट रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी की, वेदर दे डिलीवरी द गुड इन टाइम और नॉट, ये सब को चेक किया जाएगा। तो यही वही है, द कमिटी विल सर्वे द मार्केट टू असर्टेन द रीजनेबलनेस ऑफ रेट, क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशंस एंड आइडेंटिटी द अप्रोप्रिएट सप्लायर, कि जिस बिडर से, जिस सप्लायर से उसको प्रोक्योर किया जाएगा उसका अगेंस्ट में कोई ऐसा कुछ करप्शन चार्जेस नहीं है, कि कोई भी ऐसा कोड ऑफ इंटीग्रिटी को वो ब्रीच नहीं किया है। ठीक है, तो फिर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रीजनेबल प्राइस, स्पेसिफिकेशन क्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर प्राइस जिसका लीस्ट प्राइस होगा, कम प्राइस होगा, उससे प्रोक्योर किया जाएगा। मगर उसके पहले परचेज ऑर्डर देने के पहले एक
फिर एक सर्टिफिकेट को रिकॉर्ड किया जाएगा कि भाई है बिफोर रिकमेंडिंग प्लेसमेंट ऑफ द परचेज ऑर्डर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी विल जॉइंटली, तो मेंबर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो एक सर्टिफिकेट जॉइंटली रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो अभी सर्टिफिकेट को देखेंगे। इसमें क्लियरली मेंशन सर्टिफाइड दैट वी मेंबर्स ऑफ द परचेज कमिटी आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली सर्टिफाइड दैट द गुड्स रिकमेंडेड फॉर परचेज आर ऑफ द रिक्विसाइड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी प्राइस्ड एट द प्रिवेलिंग मार्केट रेट and the supplier recommended is reliable and competent to supply the goods in question and it is not deviated by Department of Commerce or Ministry or Department concerned। ये क्लियरली मेंशन है कि इस सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होगा स्पेसिफिकेशन क्वालिटी अच्छा है, जो प्राइस है वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के हिसाब से है, और जो सप्लायर को रिकमेंड किया गया वो रिलिएबल है, ठीक है, और कॉम्पिटेंट है, और उसको डिवेयर नहीं किया गया। ओके, कोई भी कोड ऑफ इंटीग्रिटी को वो ब्रीच नहीं किया है, उसका पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से कोई करप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो ऐसे एक सर्टिफिकेट रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर परचेज ऑर्डर उसको दिया जाएगा। राइट, नेक्स्ट वन, रूल 156, परचेज ऑफ गुड्स डायरेक्टली अंडर रेट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली अभी जेएमएसपीवी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल, जेएमएसपीवी आप जानते हो, जो ये है जेएमएसपीवी, ये एक लिमिटेड कंपनी है, उसको स्पेसिफिक ऑटोनोमस पावर दिया गया है, वो अभी जेम पोर्टल को कंट्रोल कर रहा है। उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करेगा, उनका ऑथेंटिकेशन को चेक करेगा, पास्ट रिकॉर्ड, उनका गुड्स का क्वालिटी, स्पेसिफिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, रिलिएबिलिटी, ये सब चेक करेगा। तो उनको उनके साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि किस प्राइस में वो बेचना चाहते हैं। तो ये जो वही रेट कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली रेट कॉन्ट्रैक्ट जो जेम पोर्टल में जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स है और वो जो भी गुड्स वो सप्लाई करेंगे, ऑलरेडी जेएमएसपीवी उनके साथ ऑलरेडी रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है कि किस प्राइस में वो सेल करेंगे उनका गुड्स को, उसके ऊपर है। इन केस ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रोक्योर्स सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टू से जेएमएसपीवी रेट कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स, द प्राइसेस टू बी पेड फॉर सच गुड्स शैल नॉट एक्सीड दोज स्टिपुलेटेड इन द रेट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी प्राइस रेट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ है, यदि कोई गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी, अभी मैंडेटरी है, जो भी जेम पोर्टल में है गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज को मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो जेम पोर्टल से खरीदेंगे। तो जो रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो रेट है, उससे ज़्यादा प्राइस वो नहीं दे सकते। जो प्रोक्योरिंग एंटिटीज है वो ज़्यादा प्राइस नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी उन जो गुड्स का जो रेट है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, वो ऑलरेडी रेट कॉन्ट्रैक्ट जेएमएसपीवी के साथ कर चुके हैं जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स, तो उससे ज़्यादा प्राइस नहीं देंगे प्रोक्योरिंग एंटिटीज, वही चीज़ दिया है। ठीक है, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शाल मेक इट्स ओन अरेंजमेंट, ये जो रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शाल मेक इट्स ओन अरेंजमेंट फॉर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सच गुड्स व्हेरेवर रिक्वायर्ड। तो ये कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी, ये खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेसिकली गुड्स को चेक करेगा। तो बेसिकली डिफरेंट सप्लायर्स आर देयर, दे आर सेलिंग द पर्टिकुलर कमोडिटी, तो सभी सप्लायर्स का गुड को जो कंसर्न गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी है वो इंस्पेक्ट करेगा। सो खुद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टेस्ट करेगा, उसको इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, राइट। नेक्स्ट वन, द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन दैट जेएमएसपीवी शुड होस्ट द स्पेसिफिकेशंस, prices and other salient details of different rate contracted items appropriately updated on the website for use by the procuring ministry or department। तो ऑलरेडी जो जेएमएसपीवी है वो ऑलरेडी रेट कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, जो स्पेसिफिकेशन है, क्वालिटी है, प्राइस है, तो पर्टिकुलर कमोडिटी का स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, क्या प्राइस, वो ऑलरेडी अपडेटेड है और वेबसाइट में अवेलेबल है। तो जब गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी वो खरीदना चाहता है वो इंस्पेक्ट करेगा, सो डिफरेंट सप्लायर्स का गुड को चेक करेगा, टेस्ट करेगा, देखेगा, स्पेसिफिकेशंस को चेक करेगा, क्वालिटी को चेक करेगा, प्राइस को चेक करेगा, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी उसको अच्छा लगेगा जिस सप्लायर, उससे वो प्रोक्योर करेगा जेम पोर्टल से, राइट।
नेक्स्ट पार्ट 150 रूल 157 अवॉइड पीस मील परचेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डिमांड फॉर गुड्स शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज। ए डिमांड फॉर गुड्स शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज टू मेक पीस मील परचेजेस to avoid the necessary of obtaining the sanction of higher authority required with reference to the estimated value of the total demand। तो यहां पर क्या है, ज्यादातर प्रोक्योरिंग एंटिटी को अवॉइड करना है, क्योंकि जब भी वो गुड को प्रोक्योर करेंगे तो उस समय क्या करेंगे, सपोज वो जेम पोर्टल से अभी गुड प्रोक्योर करना चाहते हैं तो वो कितना क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एक्चुअली वो प्रोक्योर करेंगे, तो वो टोटल डिमांड होगा। वो हायर अथॉरिटी से परमिशन लेंगे, तो बार बार तो परमिशन नहीं लेंगे, इसलिए जो भी होगा एक ही डिमांड में वो खरीदा जाएगा। ओके, अभी कुछ क्वांटिटी खरीदेंगे और कुछ दिन के बाद और कुछ क्वांटिटी खरीदेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि एक बार ही जो जितना रिक्वायरमेंट है, जितना क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है, एक बार ही वो हायर अथॉरिटी से परमिशन लाएंगे और डायरेक्टली वो जेम पोर्टल से प्रोक्योर करेंगे। तो इसमें वो ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए, जो पीस मील परचेज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बार बार तो वो हायर अथॉरिटी का परमिशन नहीं लेंगे, तो एक बार तो डिमांड उनको देना चाहिए। एक बार वो डिमांड देंगे और जितना रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली जेम पोर्टल से खरीदेंगे। तो पीस मील परचेज को ओके अवॉइड करना जरूरी है। तो पार्ट अभी कुछ पार्ट खरीदेंगे, वही गुड और कुछ पार्ट फिर कुछ दिन के बाद खरीदेंगे, उसको अवॉइड करना चाहिए, राइट। ये रूल 157 है, अवॉइड पीस मील परचेज। रूल 158 परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बीड्स। तो यहां पर द स्टैंडर्ड मेथड क्या है, ऑब्टेनिंग बीड्स फ्रॉम आउटसाइड, जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, टू स्टेज बिडिंग, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शंस। ये जो 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिडिंग प्रोसेस होता है तो बेसिकली अमाउंट भी फिक्स हुआ है और डिफरेंट मेथड से ओके कौन सा मेथड, कौन सा बिडिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा गुड को प्रोक्योर करने के लिए, यही है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्टेनिंग बीड्स। एक एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर, टू स्टेज बिडिंग, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, आगे में हम डिस्कस करेंगे। ये 5 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और कोई भी भाई आप फेस कर रहे हो तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि हम गुड प्रोक्योर करना चाहते हैं आउटसाइड से और बेसिकली प्राइस जो इट मीन्स मॉनेटरी लिमिट होता है, और कभी कभी हम कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है कि प्लांट है उसको प्रोक्योर करेंगे, कौन सा प्रोसेस चाहिए, कि एक सिंगल मैन्युफैक्चरर से हम प्रोक्योर करेंगे, कौन सा मेथड है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिडिंग प्रोसेसेस आर देयर, एडवर्टाइज्ड, लिमिटेड, टू स्टेज, सिंगल टेंडर, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। ये क्लियरली मेंशन है रूल 158 में। ओके, डिफरेंट बिडिंग प्रोसेस, राइट। तो आगे में एक एक हम डिस्कस करेंगे। चलो, रूल 159 ई पब्लिशिंग के ऊपर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, they are attached and subordinate offices and autonomous or statutory bodies to publish their tender inquiries। यदि आप बिडिंग इंक्वायरी करोगे, बिड इनवाइट करोगे, तब जो टेंडर इंक्वायरीज को पब्लिश करना है, उसका एडवर्टाइजमेंट देना है, कोरिजेंडा, कोई ऐसा कुछ एडिशनल थिंग आप देना चाहते हो, और बीड अवार्ड्स जिसको फाइनली जिस सप्लायर को, जिस बीडर को अवार्ड दे दिया गया, ये सब सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल CPPP में ओके ये सब पब्लिश होना चाहिए। हम कोई कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वो अभी बिडिंग इनवाइट कर रहा है तो वो पहले एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेगा खुद का वेबसाइट में और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में वो अपलोड करेगा, ठीक है। और कोई कोरिजेंडा है, कोई एडिशनल थिंग वो देना चाहता है बिडर्स को, और फाइनली जिस बिडर को अवार्ड दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ये पूरा पब्लिश होगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ओके। CPPP की जेम पोर्टल, CPPP और
खुद का जो कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का जो खुद का वेबसाइट में भी पब्लिश होगा। ओके, जब बिडिंग इनवाइट किया जाएगा पूरा डॉक्यूमेंट्स उसका अपलोड किया जाएगा, पूरा बिड ओपनिंग डेट क्या है, कि उसका क्राइटेरियाज क्या है, कैसे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को इवेलुएट किया जाएगा, फाइनली किस तरीके से एक्चुअली जो अवार्ड दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, ये पूरा डिटेल्स ओके एडवर्टाइजमेंट के साथ पूरा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाएगा। और फाइनली जो अवार्ड दे दिया जाएगा, जिस बिडर को अवार्ड दिया गया और क्यों दिया गया, उसको अदर बिडर्स को क्यों रिजेक्ट किया गया, ये भी। और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो बिडर्स को, जब वो इट मीन्स बिड डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं, उस केस में कुछ एडिशनल चीज आप ऐड करना चाहते हो तो कोरिजेंडा में वो चला जाता है। तो ये सब चीज सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में पब्लिश होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल केसेस where confidentiality is required for reasons of national security, यदि कोई ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी, उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मैंडेटरी ई पब्लिशिंग रिक्वायरमेंट। कभी कभी क्या है, बिडिंग तो इनवाइट किया जाएगा, उस केस में कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी है, कुछ नेशनल सिक्योरिटीज इशू है, तो उस केस में एक्चुअली उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। द डिसीजन टू एग्जेम्प्ट एनी केस ऑन द सेड ग्राउंड शुड बी अप्रूव्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विद द कंकरेंस ऑफ द कंसर्न फाइनेंशियल एडवाइजर। तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है कि डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, और उसी के साथ जो फाइनेंशियल एडवाइजर विद कंकरेंस ऑफ द कंसर्न फाइनेंशियल एडवाइजर का अप्रूव्ड होने के बाद उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में। ओके, आपको याद रखना है, कभी कभी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए और कोई कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी इशू के वजह से उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता। मगर इस केस में क्या है, जो मिनिस्ट्री, जो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विथ कंकरेंस ऑफ द कंसर्न फाइनेंशियल एडवाइजर का अप्रूवल लेके उसको पब्लिश नहीं करना है। और इन केस ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, in the case of autonomous bodies and statutory bodies, approval of the head of the body with the concurrence of the head of the finance should be obtained in such case। यदि पब्लिश नहीं किया जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, बेसिकली ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडीज वो अप्रूवल लेंगे, जो हेड ऑफ द बॉडी है और उसके साथ भी हेड ऑफ द फाइनेंस, उनका अप्रूवल लेके उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि कितना केस में एक्चुअली पब्लिश नहीं हुआ, ई पब्लिश नहीं हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के वजह से कितना केस में एक्चुअली वो पब्लिश नहीं हुआ, उसका स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन क्वार्टरली देना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ केसेस इन which exemption was granted and the value of the concerned contract should be intimated on a quarterly basis to the Ministry of Finance, Department of Expenditure। तो कितना केस में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए, कि नेशनल सिक्योरिटी के वजह से कितना केस को पब्लिश नहीं किया गया, और वहाँ पर जो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड, बेसिकली वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड गुड्स, ओके, जो गुड्स को उस केस में जो टेंडर प्रोसेस था कि जो अवार्ड दे दिया गया, तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है, वो पूरा डाटा क्वार्टरली देना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। नेक्स्ट वन, इन द केस ऑफ प्रोक्योरमेंट्स मेड थ्रू जेम एसपीवी रेट कॉन्ट्रैक्ट्स और थ्रू एनी अदर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ओनली अवार्ड डिटेल्स नीड टू बी पब्लिश्ड। यदि जो जेम एसपीवी, in the case of procurement made through JM SPV rate contracts or through any other central procurement organizations, only award details को देना है। यदि JM SPV रेट से प्रोक्योर किया जाता है कि कोई अदर कोई सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट को फॉलो करके उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गुड को प्रोक्योर किया गया है, ओनली अवार्ड डिटेल्स पब्लिश होगा। ओके, किस सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो पब्लिश होगा, राइट। Next one, these instructions would not apply to the procurements made in terms of provisions of Rule 154
परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशंस और 155 परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमिटी ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ये जो विदाउट कोटेशन और जो लोकल परचेज कमिटी के द्वारा जो गुड को प्रोक्योर किया गया वो पब्लिश नहीं होगा। ये ई पब्लिशिंग जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। जो रूल 159 ई पब्लिशिंग है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बेसिकली विदाउट कोटेशन में जो गुड प्रोक्योर किया गया, ये लोकल परचेज कमिटी के द्वारा जो गुड प्रोक्योर किया गया वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए ई पब्लिशिंग, ओके। उसको सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में पब्लिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन रूल 160 रिलेटेड टू द ई प्रोक्योरमेंट। जो फर्स्ट बीट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मैंडेटरी फॉर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स टू रिसीव ऑल बिड्स। इट इज मैंडेटरी फॉर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स टू रिसीव ऑल बिड्स थ्रू ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट्स। यदि आप बीड इन्वाइट किया, जो भी बीड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी कोरिजेंडा है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सबको आपको ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में अपलोड करना है। ये मैंडेटरी है, ओके। बीड इन्वाइट किया जाएगा थ्रू ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ठीक है। यदि कोई अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया वो भी क्लियरली मेंशन होगा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में कि इतना वर्थ ऑफ गुड्स एक्चुअली इसी सप्लायर को दे दिया गया, इसी सप्लायर से इस प्राइस में गुड को प्रोक्योर किया जाएगा। तो अभी जो बीड इन्वाइट होगा ना वो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से इन्वाइट किया जाएगा और वहां पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया जाएगा और वो सप्लायर्स एक्चुअली वो फ्रीली विदाउट एनी प्राइस वो वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, चाहे खुद का वेबसाइट कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल और जेम पोर्टल, उसमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया जाएगा और वहां से वो डाउनलोड करेंगे, ओके। और फिर फिर इसको फिलअप करने के बाद उसको स्कैन करके वो फिर अपलोड करेंगे वहां पर। तो जो भी इन्वाइट होगा अभी ये मैंडेटरी है कि ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से इन्वाइट होगा, राइट। तो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स व्हिच डू नॉट हैव ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोक्योरमेंट और कैरी आउट प्रोक्योरमेंट्स रिक्वायर्ड ओनली फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ ऑफिसेस and only for day-to-day running of offices and also have not initiated e-procurement through any other solution provided so far may use e-procurement solution developed by NIC, National Information Center। जो NIC यहाँ पर देखिए ये बताया कि कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस को डे टू डे ऑफिस रनिंग करने के लिए कुछ कमोडिटीज चाहिए, एक लार्ज क्वांटिटी का कमोडिटी नहीं चाहिए, ओनली फॉर रनिंग ऑफ ऑफिसेस डे टू डे मैनर। तो उनको जो गुड्स वो प्रोक्योर करेंगे वो ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन डेवलप्ड बाय NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, वो ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन एक्चुअली डेवलप किया है। तो उसको यूज करके वो गुड को प्रोक्योर कर सकते हैं। वो इट मीन्स बीडिंग इन्वाइट कर सकते हैं और अल्टीमेटली वो बीड कॉन्ट्रैक्ट फाइनली बीड अवार्ड देके वो पर्टिकुलर सप्लायर से गुड को प्रोक्योर कर सकते हैं। और इस केस में क्या होगा, यदि वो कम क्वांटिटी का गुड वो प्रोक्योर करेंगे और ओनली फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ ऑफिसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में आइदर यूज ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन डेवलप्ड बाय NIC और एंगेज एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। These instructions will not apply to procurements made by ministries or departments through JAM SPV rate contracts। यदि JAM SPV रेट कॉन्ट्रैक्ट से ओके गुड को प्रोक्योर किया जाएगा तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जाएगा। और इन इंडिविजुअल केस वेयर नेशनल सिक्योरिटी अगेन वेयर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस डिमांड्स कॉन्फिडेंशियलिटी, ministry or departments may exempt such cases from e-procurement after seeking approval of concerned secretary and with concurrence of the financial advisor। यदि ऐसा कुछ नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है और कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है तो इस केस में उसको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के द्वारा बिडिंग को इन्वाइट नहीं किया जाएगा। वही दिया है, मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स में exempt such cases from e-procurement after seeking approval of the concerned secretary of the ministry or department and with concurrence of the financial advisors, ठीक है। In case of tenders floated by Indian missions abroad, competent authority to decide the tender may exempt such case from e-procurement। यदि ऐसा कुछ गुड्स सपोज कमोडिटी अवेलेबल नहीं है इंडिया में तो उसको हम अब्रोड से अभी हम प्रोक्योर करना चाहते हैं
तो इस केस में भी इट मीन्स ई प्रोक्योरमेंट को अवॉइड किया जाएगा। ओके, यदि कोई गुड पर्टिकुलर कमोडिटी को अब्रोड से प्रोक्योर करना है तो इस केस में भी ई प्रोक्योरमेंट में उसको अवॉइड किया जाएगा। वो बेसिकली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू डिसाइड द टेंडर मे एग्जेम्प्ट सच केस फ्रॉम ई प्रोक्योरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी टेंडर फ्लोट होगा ओवरसीज से और अब्रोड से, तब इसको ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बिडिंग को इन्वाइट किया जाएगा वो ई प्रोक्योरमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट है उसको अवॉइड किया जाएगा। राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। फास्ट अगर रूल 161, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 161, यहाँ पर हम देखेंगे एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को कब फॉलो किया जाएगा। व्हेन एक्चुअली एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी वुड बी फॉलोड। फर्स्ट वन, व्हेन वर्थ ऑफ गुड्स इट इज इक्वल टू ₹25 लाख एंड अबोव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स वो ₹25 लाख होगा और उससे ज़्यादा होगा, तब हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को चलेंगे। तब एडवर्टाइजमेंट होगा, जो टेंडर प्रोसेस होगा, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट होगा, फिर बिडिंग इनवाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जो एस्टिमेटेड गुड्स का वैल्यू होगा वो इक्वल टू 25 लाख रुपीज होगा एंड अबव होगा। एडवर्टाइजमेंट इन सच केसेस शुड बी गिवन। एडवर्टाइजमेंट इन सच केसेस शुड बी गिवन ऑन सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। एडवर्टाइज देना है, जब बिडिंग को इनवाइट किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट देना है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर दिया जाएगा? खुद का वेबसाइट में, जो कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री उसका खुद का वेबसाइट में एडवर्टाइज करेगा, और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में और जेम पोर्टल में उसको एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, और जो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है इसका वेबसाइट है www.eprocure.gov.in एंड ऑन जेम में अभी बताया। तो एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया जाएगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में एंड जेम पोर्टल में। और जो CPPP का पोर्टल है वो eprocure.gov.in है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इट्स ओन वेबसाइट शुड ऑल्सो पब्लिश। तो मैं बताया खुद का वेबसाइट में पब्लिश होगा एडवर्टाइजमेंट, और CPPP में और जेम पोर्टल में। ठीक है, एडवर्टाइज पब्लिश होगा। और द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो पोस्ट द कंप्लीट बिडिंग डॉक्यूमेंट। सेकेंड जो है यहाँ पर क्या होगा, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अभी तो डायरेक्टली फिजिकली बिडर आके नहीं लेंगे, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, वेबसाइट में उसको अपलोड कर दिया जाएगा। खुद का वेबसाइट हो कि जेम पोर्टल कि CPPP में, और वो बिडर्स क्या करेंगे, जो बिडर्स अप्लाई करना चाहते हैं वो वहाँ पर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को फ्रीली डाउनलोड करेंगे। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, वही है। द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो पोस्ट द कंप्लीट बिडिंग डॉक्यूमेंट इन इट्स वेबसाइट एंड ऑन CPPP टू एनेबल prospective bidders to make use of the document by downloading from the website. The advertisements for invitation of tenders should give the complete web address. यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट होगा ना, कंप्लीट वेब एड्रेस दिया जाएगा कि किस वेब एड्रेस, आई मीन कंप्लीट वेब एड्रेस से क्या है, प्रोस्पेक्टिव बिडर्स को पता चल जाएगा कि वो कहाँ से एक्चुअली वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे, फ्रॉम विच साइट्स दे मूव एंड डाउनलोड द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और फ्रीली वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे, मगर एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करना है कि किस वेबसाइट में एक्चुअली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, इन ऑर्डर टू प्रमोट वाइडर पार्टिसिपेशन एंड इजी ऑफ बिडिंग, नो कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट में बी चार्ज फॉर द टेंडर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोडेड बाय द बिडर्स। ये तो वेरी कॉमन चीज है कि यहाँ पर जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जो बिडर्स डाउनलोड करेंगे और वहां पर उनको कॉस्ट नहीं लगेगा। इसके वजह से क्या है, थोड़ा ज़्यादा बिडर्स वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, कॉस्ट लगेगा मीन्स वेरी लेस नंबर ऑफ बिडर्स एक्चुअली दे कैन अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट वन जो फोर्थ बिट है, यहां पर दो बिट है, IVUC बिट A, where the ministerial department feels that goods of the required quality, specifications etc. may not be available in the country and it is necessary to also look for suitable competitive offers from abroad. तो यहां पर यह लगता है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट को कि पर्टिकुलर क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस का कमोडिटी वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसको प्रोक्योर किया जाएगा अब्रोड से।
तो यहां पर क्या होगा, ये रेड पार्ट को देखिए, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में सेंड कॉपीज ऑफ द टेंडर नोटिस टू द इंडियन एम्बासीज अब्रोड एज वेल एज टू द फॉरेन एम्बासीज इन इंडिया। तो यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ये डिटेक्ट हुआ, कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ने डिटेक्ट किया कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन का गुड इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसको ओवरसीज से कि अब्रोड से उसको प्रोक्योर किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करेगा, कॉपीज को सेंड करेगा। जैसे हम अभी यूएसए से उसको प्रोक्योर करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो जो हमारा एम्बेसडर जो यूएसए में है उसको टेंडर कॉपी सेंड किया जाएगा, और जो यूएसए का जो एम्बेसडर इंडिया में है उसको भी टेंडर नोटिस उसको भी दे दिया जाएगा। तो द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में सेंड कॉपीज ऑफ द टेंडर नोटिस। तो दोनों को, मेरा जो एग्जांपल है यूएसए से हम सपोज हम चाहते हैं कि गुड़ को प्रोक्योर करेंगे, तो हमारा जो एम्बेसडर है यूएसए में उनको एक जो टेंडर नोटिस का कॉपी दे दिया जाएगा, और यूएसए का जो एम्बेसडर हमारा कंट्री में है उनको भी टेंडर कॉपी दे दिया जाएगा। और द सिलेक्शन ऑफ द एम्बासीज will depend on the selection of the embassies will depend on the possibility of availability of the required goods in such countries। मगर ये एक्चुअली पब्लिश नहीं होगा ई प्रोक्योरमेंट में, ये ई प्रोक्योरमेंट में पब्लिश नहीं होगा। ओनली जो टेंडर नोटिस है जो हमारा एम्बेसडर है अब्रोड में उनको दे दिया जाएगा, और जो अब्रोड का एम्बेसडर हमारा कंट्री में है उनको नोटिस दे दिया जाएगा। और आपको याद है जो रूल 160 है वहां पर एक्चुअली जो ई प्रोक्योरमेंट जो होता है पूरा, इट मीन्स इट इज मैंडेटरी फॉर द डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज टू प्रोक्योर गुड्स, ओके, इट मीन्स टू इनवाइट बिड्स थ्रू ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, यहां पर थोड़ा उसको अवॉइड किया जाएगा। ठीक है, यहां पर जो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नो जीटी, नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी हाउएवर शैल बी इनवाइटेड फॉर टेंडर्स अप टू ₹200 crore और सच लिमिट आज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। इसमें क्या है, इसमें दे दिया गया कि यदि जो वर्थ ऑफ गुड्स लेस देन ₹200 crore है तब जीटी से, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी से उसको प्रोक्योर नहीं किया जाएगा। जब गुड्स का वर्थ मोर देन ₹200 crore होगा तब वो इट मीन्स अब्रोड से उसको प्रोक्योर किया जाएगा, बा ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी से उसको परचेज किया जाएगा। तो यहां पर ये लिमिट को याद रखना है। तो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में यदि गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा अब्रोड से तब उसका वर्थ क्या होना चाहिए, मोर देन ₹200 crore, वही दे दिया। नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी हाउएवर शैल बी इनवाइटेड फॉर टेंडर्स अप टू ₹200 crore, राइट, और सच लिमिट आज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। कभी कभी क्या है, लेस देन 200 crore है फिर भी उसको ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी से उसको प्रोक्योर किया जाएगा, मगर वहां पर क्या है, प्रोवाइडेड दैट फॉर टेंडर्स बिलो सच लिमिट इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फील्स दैट देयर आर स्पेशल रीजंस फॉर जीटी, it may record its detailed justification and seek prior approval for relaxation to the above rule from the competent authority specified by the Department of Expenditure। एक्सेप्शनल केस में यदि वर्थ ऑफ गुड्स का जो वर्थ ऑफ गुड्स लेस देन ₹200 crore होगा, एक्सेप्शनल केस में विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी से उसको प्रोक्योर किया जाएगा। अदरवाइज जो कॉमन है जीटी में, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में वर्थ ऑफ गुड्स सभी समय कितना होना चाहिए, मोर देन ₹200 crore, ओके, लेस देन 200 crore होगा तो नॉर्मली उसको जीटी से प्रोक्योर नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस में किया जाएगा मगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन से और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का परमिशन लेने के बाद, राइट। तो यहां पर जो टाइमिंग, जो बीड डॉक्यूमेंट को जमा किया जाएगा तो उसका टाइमिंग कितना होगा, जो ओपनिंग डेट, बीड ओपनिंग डेट एंड बीड क्लोजिंग डेट। Ordinarily, the minimum time to be allowed for submission of bids should be 3 weeks, minimum 3 weeks, minimum 21 days, उससे ज़्यादा हो सकता है मगर minimum 3 weeks। कैसे हम 3 weeks को कैलकुलेट करेंगे ना, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द टेंडर नोटिस और अवेलेबिलिटी ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल, जो भी लेटर होगा, जो भी बाद में होगा, दो कंडीशन। एक है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग, जिस डेट में पब्लिश किया गया टेंडर नोटिस को,
और जिस डेट में बिडिंग डॉक्यूमेंट को सेल किया जाएगा, ये दोनों केस में जो बाद में होगा, व्हिच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा, उससे हम क्या करेंगे, मिनिमम 3 वीक्स टाइम देना है। ठीक है, मिनिमम 3 वीक्स टाइम देना है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट को डिपॉजिट करने के लिए, राइट। Wherever the department also contemplates obtaining bids from abroad, यदि डिपार्टमेंट ये सोचता है कि अभी हम बिड्स को अब्रोड से भी इनवाइट करेंगे, ओके, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो इनवाइट फ्रॉम अब्रोड, तब इस केस में बोथ जो डोमेस्टिक और फॉरेन बिडर्स है उनको मिनिमम 4 वीक्स टाइम दे दिया जाएगा। यदि ये सोचता है कि डिपार्टमेंट कि कुछ फॉरेन बिडर्स को भी इनवाइट किया जाएगा, यदि फॉरेन बिडर्स को इनवाइट किया जाएगा मिनिमम 4 वीक्स दिया जाएगा, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिडर्स को। यदि ओनली डोमेस्टिक बिडर्स को इनवाइट किया जाएगा तो जो टाइमिंग होगा मिनिमम 3 वीक्स दिया जाएगा। और मिनिमम 3 वीक्स जो होगा वो कैसे काउंट होगा ना, फर्स्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, और एक कंडीशन है कि जिस डेट में बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सेल किया गया, जो भी बाद में होगा, व्हिच एवर इज लेटर, ठीक है, उससे आप 3 वीक्स कैलकुलेट करना है। यदि हम डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट वो बिडिंग इनवाइट किया अब्रोड से, तब बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिडर्स को जो मिनिमम टाइम, मिनिमम 4 वीक्स दिया जाएगा, मिनिमम 4 वीक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रूल 162 लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, ये लास्ट पार्ट है आज का वीडियो का। रूल 163 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिमिट देख लेंगे। इसका जो लिमिट है आपको याद रखना है कि मोर देन 2.5 लाख, मोर देन 2.5 लाख टू 25 लाख, ये जो लिमिट है एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ गुड्स का जो लिमिट है, मोर देन 2.5 लाख होगा, अप टू 25 लाख होगा, तब हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे, राइट। जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में हम देखा कि 25 लाख एंड अबोव, और एडवर्ट मीन जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होगा मोर देन 2.5 लाख एंड अप टू 25 लाख वर्थ ऑफ गुड्स। यदि एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ गुड्स मोर देन 2.5 लाख होगा एंड अप टू 25 लाख होगा, तब हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे। भाई क्लियरली दे दिया, अप टू ₹25 लाख। तो यहां पर जो रजिस्टर्ड, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो कॉपीज ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड बी सेंट डायरेक्टली, कॉपीज ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड बी सेंट डायरेक्टली बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर, ईमेल टू फार्म्स व्हिच आर बर्न ऑन द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स। जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स है तो उनको डायरेक्टली जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर दिया जाएगा। कैसे, चाहे स्पीड पोस्ट हो, चाहे कोरियर हो, चाहे मेल हो, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट हो, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कैसे भेजा जाएगा, कैसे बिडिंग लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में हाउ कैन बिडिंग डॉक्यूमेंट्स सेंड टू द रजिस्टर्ड सप्लायर्स थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, थ्रू LTE इसको बोलते हैं, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, ठीक है। तो उसमें बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को भेज दिया जाएगा, उनका मेल में, कोरियर में, रजिस्टर्ड पोस्ट में, स्पीड पोस्ट में उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लिमिट हो गया, ये हो गया। द नंबर ऑफ सप्लायर्स मोर देन 3 होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यहां पर जो है, जो नंबर ऑफ सप्लायर्स होंगे वो मोर देन 3, तो फर्स्ट वन लिमिट हो गया मोर देन 2.5 लाख एंड अप टू 25 लाख। सेकेंड वन, जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको डायरेक्टली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर दिया जाएगा, उनका मेल में, चाहे कोरियर, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिया जाएगा। और जो नंबर ऑफ सप्लायर्स होना चाहिए मोर देन 3, मोर देन 3, कभी कभी आपको ये लिखना है एटलीस्ट 4, कभी कभी क्वेश्चन आता है एटलीस्ट 4, मोर देन 3 मीन्स एटलीस्ट 4, उससे ज्यादा होना चाहिए, मगर एटलीस्ट 4 और मोर देन 3 होना चाहिए। Next one, efforts should be made to identify a higher number of approved suppliers to obtain more responsive bids on competitive basis। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिडर्स अप्लाई करेंगे उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जो प्राइस है, रीजनेबल प्राइस जो है, प्राइस मार्केट प्राइस के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इतना रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ये जो होगा थोड़ा कंपटीशन होगा, ज्यादा से ज्यादा बिडर्स वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। तो बेसिकली जस्ट टू अवॉइड अनड्यू रेस्ट्रिक्शंस, जो ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होने से क्या है, कम बिडर्स एक्चुअली अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए चाहे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो, चाहे प्राइस हो, प्राइस भी कंपैटिबल होना चाहिए मार्केट प्राइस के साथ। तो उसके इसको देख के कैसे ज्यादा से ज्यादा बिडर्स अप्लाई करेंगे उसको ध्यान दिया जाएगा।
Again, an organization should publish its limited tender inquiries on CPPP. Apart from CPPP, the organization should publish the tender inquiries on the departments और ministries website. ये तो कॉमन चीज़ है. और इसको लिमिटेड टेंडर LTE में हम गुड प्रोक्योर करना चाहते हैं और बिडिंग इनवाइट करना चाहते हैं तो उसको पब्लिश किया जाएगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जेम पोर्टल, और जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का जो खुद का वेबसाइट है उसमें पब्लिश किया जाएगा. राइट. नेक्स्ट वन, द अनसोलिसिटेड बिड्स शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. अनसोलिसिटेड मीन्स सपोज जो सप्लायर्स को डिवेयर किया गया है, ओके, जो सप्लायर्स को डिवेयर कर दिया गया है, बारण कर दिया गया है, अंकुश लगा दिया गया है जिस बिडर को, चाहे वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया है, चाहे वो कुछ करप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ है, तो उस केस में उनका बिड को एक्सेप्ट नहीं करना है. ठीक है, वही है जो डिवेयर बिडर्स का, उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है. परचेज थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में भी अडॉप्टेड इवन वेयर द एस्टिमेटेड वैल्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो थर्ड बिट दो पार्ट है, कभी कभी क्या है, हम जानते हैं कि जब एस्टिमेटेड गुड्स का वर्थ 25 लाख होगा एंड उससे ज्यादा होगा, व्हेन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स इज ₹25 लाख एंड अबोव, तब हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे. पर कभी कभी क्या है, वर्थ ऑफ गुड्स क्या होगा ना, मोर देन ₹25 लाख होगा, तभी भी हम LTE में जाएंगे, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे. क्यों? एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में नहीं जाएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी वर्थ ऑफ गुड्स का वैल्यू जो है मोर देन ₹25 लाख है, फिर भी हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को फॉलो करते हैं. क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या है, कुछ अर्जेंट, जो रेड सेंटेंस को देखिए, अर्जेंट एंड एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर, ये कुछ अर्जेंट इमरजेंसी केस में, और ये डिपार्टमेंट सोचता है अभी हम एडवर्टाइज टेंडर को जाएंगे तो हमको एडिशनल एक्सपेंडिचर लगेगा. तो एडिशनल एक्सपेंडिचर को अवॉइड करने के लिए, चाहे वर्थ ऑफ गुड्स मोर देन ₹25 लाख हो, फिर भी उसको लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में प्रोक्योर किया जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, अर्जेंट केस में और टू अवॉइड एडिशनल एक्सपेंडिचर. राइट. मगर यहां पर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है. जस्ट प्रॉपर जस्टिफिकेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा इसी अर्जेंट बेसिस से, इसी इमरजेंसी कंडीशन में, और डिपार्टमेंट नहीं चाहता है कि एडिशनल एक्सपेंडिचर बियर करे, तो इसके वजह से एक्चुअली यहाँ पर जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स है मोर देन ₹25 लाख है, फिर भी हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी से उसको प्रोक्योर करने के लिए बिडिंग को इनवाइट किया गया, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को अवॉइड किया गया. फर्स्ट रीजन हो गया. सेकंड क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है. एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी से प्रोक्योर करने के लिए एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो वर्थ ऑफ गुड्स मोर देन ₹25 लाख है, पर फिर भी उसको लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में डिपार्टमेंट प्रोक्योर करेगा, क्योंकि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को एक्चुअली पब्लिक अवॉइड कर रहे हैं. तो टू होल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट, टू कीप द पब्लिक इंटरेस्ट, now also it means worth of goods is more than ₹25 lakh, but instead of this the department or ministry want to procure the goods through LTE, limited tender inquiry, to protect the public interest. Second one. Okay, third one ऐसा कुछ है कि फिर हम एक सोर्स को जाएंगे. एडवर्टाइज टेंडर, ये थर्ड जो है, द सोर्सेस ऑफ सप्लायर डेफिनेटली नोन, the sources of supply are definitely known and possibility of fresh sources beyond those being tapped in remote. अभी क्या है, जो हमको सोर्स पता है, कौन सा सोर्स से हम गुड प्रोक्योर करेंगे, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी से हमको पता है, फिर हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को जाएंगे, फिर जो सोर्स होगा वो रिमोट हो जाएगा. तो इसके वजह से क्या है, वर्थ ऑफ गुड्स मोर देन ₹25 लाख है, फिर भी हम LTE से परचेज करना चाहते हैं. तो ये 2-3 चीज को याद रखना है. वर्थ ऑफ गुड्स अबव ₹25 लाख मीन्स हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जाना है, LTE में जाना है, और फिर भी हम LTE को, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को अवॉइड कर रहे हैं और उसको लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में प्रोक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी और अर्जेंट केस में. ठीक है. और सेकेंड वन टू होल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट, और थर्ड वन क्या है, हमको फिर जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जो सोर्स आएगा वो थोड़ा रिमोट हो जाएगा. और क्या है, और कभी कभी क्या है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में हम प्रोक्योर करेंगे तो हमको एडिशनल एक्सपेंडिचर लगेगा. इसके वजह से क्या है, हम चाहे वर्थ ऑफ गुड्स मोर देन ₹25 लाख हो, फिर भी उसको लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री उसको प्रोक्योर करना चाहता है. तो ये इतना है. तो 162 तक मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसमें 2 बिड सिस्टम, 2 स्टेज बिडिंग, सिंगल टेंडर इंक्वायरी एंड रिवर्स ऑक्शन टूल के ऊपर मैं बताऊंगा, क्योंकि ये 2 बिडिंग प्रोसेस में बताया, एडवर्टाइज्ड एंड लिमिटेड. एडवर्टाइज्ड 161,
लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी 162, ATE एंड LTE दोनों डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो पार्ट 3 आएगा उसमें और जो बिडिंग प्रोसेसेस है, टू बीड है, टू स्टेज बिडिंग है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी है और जो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन टूल है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो प्लीज go through the video till the end so that you can get all the informations, and suppose anywhere you think that my explanation is not up to the mark, please forgive me. Please excuse give to me, okay, pardon me. Yes, in some cases, you know, just I am trying to fulfill the expectation of my viewers. In some cases, you know, my explanation is not up to the mark, please forgive me. So thank you, namaskar to all of you.